Good morning, everyone. Today again I will teach you the looping concept, and also I will teach you some more programs based on for loop. And if I'll get time today itself, I'll start while loop. So without wasting any time, I'm starting the programming part. For that, I'm sharing a screen for you and starting Python here. Python ideally. Python ideally, I'm starting here. Python is started, and now we'll start straight away writing program. Yesterday I have written the program to find the sum of n natural numbers. Today I am giving you a program. Even I have written the program of find the sum of even numbers and odd numbers of n natural numbers. Today I will start one more program for you. Write question, write a program to print. Write a program. Start writing now. Write a program to print table of n m number of times. Write a program to print table of n m number of times. मतलब कोई भी टेबल कितनी बार प्रिंट करना है as follows in the following format. Like आपने 5 की टेबल ली तो 5 into 1 is equals to 5, 5 into 2 is equals to 10, and so on. This way the result should come. So I am starting new and writing program for you. सबसे पहले we are starting with n int input. ये अपने आप में एक ऐप की तरह वर्क करेगा. आप इसको प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. एंटर टेबल ऑफ, किसकी टेबल चाहिए यू एंटर इट. देन m is equals to int input, enter number of times, and then for I in range 1 comma m plus 1. जितने बार भी आपको टेबल प्रिंट करना है, फॉर दैट यू जनरेट द लूप दैट इज 1 comma m plus 1. एंड देन आई एम राइटिंग हियर सिंपली आई एम राइटिंग प्रिंट. आपको मैंने बोला है टेबल शुड कम इन द फॉर्मेट ऑफ 5 into 1, दैट्स एन एग्जांपल. सो आई एम टेकिंग n, that is 5, and then after that into this cross sign should come, cross has come, then n into, then I should write I, so that n into 1, then I will write here equals to, then n into 1 equals to, and then I will write finally n into I. N into I, that asterisk sign is required for multiplication. When you will run this program, you see the effect of this program. Run. Okay. Now see, I am writing this name as table. So table किसका चाहिए? Suppose मुझे 19 का टेबल चाहिए. कितने टाइम चाहिए? 11 टाइम्स चाहिए. So see here the result. 19 ones are 19 twos are 19 tens are 190, and 19 11s are 209. Okay. So this program and output I am keeping in front of you. Please note it down, and if you have understood, show thumbs up. Otherwise, I will explain you again. So you just see the flavor of the programming. कैसे कैसे प्रोग्राम बनते हैं. आप ये मत सोचना कि कोई बहुत ग्रेट वर्क में कर रहा हूँ. लॉजिकल बनना पड़ेगा लाइफ में. वही छोटे से स्टेटमेंट आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे. प्रोग्रामिंग का ये मतलब नहीं होता कि बहुत बड़ा प्रोग्राम बना दो. जितना बड़ा प्रोग्राम बनेगा उतना अच्छा थोड़ी नहीं है. That is why some softwares which are very big in size are not considered as a good software. The software size should be less. इतने MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जब बड़ा हो जाता है तो अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, प्रोसेसिंग सब में टाइम लगता है. तो आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो ये मुश्किल से कुछ बाइट्स में प्रोग्राम है. इवन 1 किलोबाइट भी नहीं है प्रोग्राम का साइज. और ये इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि कोई भी टेबल आप इंटर करो, कितनी भी बार इंटर करो, ये रिजल्ट देगा आपको. हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? गुड. समृद्धि, शाबाश. और कोई? शो थम्स अप so that I'll go ahead for the next program. Nischal Parth,
मानव, ओके ठीक, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है आपकी। आई एम हैप्पी यू हैव अंडरस्टूड। सो नोट इट डाउन एंड देन आई विल आइदर यू टेक ए स्क्रीनशॉट, सो आप स्क्रीनशॉट में दोनों साथ साथ करना। नेक्स्ट यू राइट अ प्रोग्राम WAP to enter a number, and check it is prime or not, and check it is prime or not. प्राइम नंबर किसे कहते हैं? Any of you? Any of you? I say Kevin, what is prime number? Could you numbers which appear only the numbers which appear only on their own tables and the ones table. Noel, your definition is correct. Noel, jaldi. Manav, Noel bolo pehle. The number which are divisible by 1 and itself. Okay, no, Manav, that is I will consider this 1 and itself. Okay, logic बनाना है ना बेटा, तो कुछ सोचना पड़ेगा कि जो 1 से और itself से डिवाइड होता है वो एक प्राइम नंबर है। मैं पहले ही बता रहा हूँ बहुत सारे लॉजिक एक प्रोग्राम के बनेंगे। आई एम टेकिंग दिस लॉजिक एज Noel and Kevin has told me the definition. I will go as per the definition. A number which is divisible by 1 and itself is prime number. So इसका मतलब ये हुआ कि 1 itself के अलावा अगर किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है, that is not a prime number, that's a composite number. Is it clear? Okay. So we'll make this program now. I am taking here n is equals to int input enter table of की जगह कर देते हैं enter a number. Enter number to check prime. Enter number to check prime or not. You लिख सकते हैं as you wish. Please mute yourself. Next is your for. देखो बीच में वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। For I in range 1, n plus 1. So अब आपने कहा था कि वो नंबर जो 1 and itself, मतलब 1 n plus 1 इसलिए करना पड़ता है कि लास्ट नंबर लाने के लिए। So 1 and itself से अगर डिवाइड होगा तो हमें उतना लूप चलाना पड़ेगा। सपोज आई हैव टेकन द नंबर एज 5, so 1 और 5 से ही डिवाइड होगा, so it is a prime number. So 1 to 5 लूप तो चलाना पड़ेगा ना भाई, तो लूप चला दिया एंड देन यहाँ कंडीशन लगाई इफ द नंबर, जो भी नंबर एग्जैक्ट डिवीजन होता है उसका रिमाइंडर 0 आता है, दैट यू नो अ नंबर, प्लीज शो थम्स अप, ये बात मेरी समझ में आ रही है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय, विच इज exactly divisible will always give you remainder as 0. So if I am writing here if n mod I double equals to 0, n mod double I equals n mod double equals to n mod I double equals to 0, that means number is exactly divisible. अगर ऐसा हो जाता है then what I am writing, अब मेरे लॉजिक को सुनना ध्यान से, ये कितनी बार एडमिट करेगा यार, एडमिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपने क्या बोला कि 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होगा वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अदरवाइज कहूँ कि अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज प्राइम नंबर। ये बात सही है या गलत है? प्लीज शो थम्स अप सो दैट मुझे समझ में आएगा, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय व्हेन इटसेल्फ इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जो इसको डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली 1 और इटसेल्फ। गुड, ओनली 2 थम्स अप आई हैव गॉट, some more thumbs up. Okay, Samriddhi, Nishchal and all. Good, shabash. Please be attentive in my class. मैंने आपको पहले ही बोला है मैं सीनियर क्लासेस जब पढ़ाता हूँ तो बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रामिंग कराता हूँ। So if n mod I equals to 0, मैं रटवा के करवा सकता था, एक रजिस्टर ला के और करके कि ये लो प्रोग्राम हो गया, मगर मुझे समझाना है। C is equals to C plus 1. What I am writing here, C is equals to C plus 1, and for that I am taking C is equals to 0 here. Variable C is equals to 0. If n mod I equals to 0, C is equals to C plus 1. अगर C equals to 2,
तो प्रिंट आपका डिसीजन आ गया, नंबर इज प्राइम, ओके, एल्स कंपोजिट नंबर और एनी अदर नंबर। ठीक, प्राइम तो नहीं है कम से कम। रन करिए एंड सी द इफेक्ट। जो लॉजिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वही मैं बना रहा हूँ। आई विल रन एंड शो इट टू यू। रन, ओके। एक मिनट इस स्क्रीन को बंद कर दो ताकि जल्दी से ऊपर ऊपर चल रहा है, नहीं तो मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आई विल अगेन रन प्रोग्राम, ओके, एंड आई एम एंटरिंग हियर वैल्यू एज सपोज आई हैव एंटर 5, नंबर इज प्राइम। एक और रन करते हैं, रन, आई एम एंटरिंग 4, कंपोजिट नंबर और एनी अदर नंबर। ठीक है, पहले आप इसको समझ गए हैं तो मुझे एक बार थम्स अप करिए, नहीं तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा आपको। नोएल को समझ में आया, शाबाश, नीचे देख लो। चिरायुष को भी समझ में आ गया, निश्चल समझ गए, गुड। समृद्धि, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और एक बार समझा दूंगा। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ, किसका स्पीकर ऑन है? प्लीज डोंट डू दैट। मैं 10 बार बोल चुका, मैं फिर सबको म्यूट कर दूंगा, कभी भी बात भी नहीं कर पाओगे मुझसे, ध्यान रखो। नाउ कम टू पॉइंट हियर, व्हाट आई एम टेकिंग हियर, वी आर टेकिंग सपोज नंबर एज 4। तो अब 4 जब नंबर एंटर हुआ तो आपका 1 to 4 लूप चला। पहले आई की वैल्यू 1 हुई, सी की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, सी इज इक्वल टू 0 हुआ, ओके। आई की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। नाउ यू टेल मी वन थिंग कि n इज 4 mod 1 इक्वल टू 0 है? आप कहोगे हाँ है। अगर ऐसा है तो c इज इक्वल टू कितना हुआ, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 हुआ या नहीं हुआ? देन आई की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। आप समझिए इस बात को, आई की वैल्यू 2 हुई। आई की वैल्यू जब 2 हुई तो यहाँ पर मुझे बताइए कि 4 mod 2 इक्वल टू 0 है या नहीं? आप कहेंगे हाँ है। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, अब 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब उसके बाद 4 mod i की वैल्यू 3 हुई। जल्दी से समझा दूं, एक प्रोग्राम थोड़ा टाइम ले लेता हूँ। 4 mod 3 इक्वल्स टू 0 है, तो आप कहोगे नो नहीं है, इक्वल टू 0 आप कहोगे नहीं है, तो नहीं है तो कुछ नहीं होगा, c इक्वल टू c + 1 नहीं होगा। फिर आप लेंगे 5, तो 5 mod 5 सॉरी फिर i की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, i इक्वल्स टू 4 होगी। तो 4 परसेंटेज मतलब mod इक्वल टू 4 mod 4 इक्वल टू 0 है। आप कहेंगे हाँ है। अगर है तो इसका मतलब हुआ c इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? नाउ c वैल्यू इज 3। नाउ वंस द वैल्यू ऑफ c इज 3, इट विल चेक द लॉजिक हियर कि c की वैल्यू क्या है। c की 2 से ज्यादा हो चुकी है, दैट मींस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, so that it will not print it as prime number, rather it will print it as composite number. Okay, now I will take the next example for you, that is c is equals to, suppose I have entered the number as 3, c is equals to 0, फिर से चला, i की वैल्यू 1 हुई। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? i की वैल्यू 1 हुई, तो 3 mod 1 इक्वल टू 0 है। आप कहोगे हाँ है, तो c इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1 हुआ। दैट मीन्स नेक्स्ट वैल्यू इज 3, i की वैल्यू 2, i इक्वल टू 2, 3 mod 2 इक्वल टू 0। यू से नो, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। i इक्वल टू 3 हुआ, दैट मीन्स 3 mod 3 इक्वल टू 0, हाँ है, तो c इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2।
अब और कोई प्रोसेसिंग होगी नहीं. Now what is the final value of C? That is 2. Now what I have written here, if C is equals to 2, number is prime. Okay, so hopefully this point is very clear to you. Please show thumbs up so that I will come to know that you have understood after explaining the logic. अब किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अच्छी बात है. Many thumbs up I have got. Good. Okay, I have that you are taking part in my class. I am happy with you. And if you are really taking interest in computer programming, आपको पता नहीं मैं आपको कहाँ तक लेके जाऊँगा. 11th and 12th I will teach you, and I promise I will make you a very good programmer. So this point is clear 100%. Should I go ahead? So please note down the program and the logic. Show thumbs up. I'll go ahead. Should I go ahead? Okay, good. So next program I'm going to teach you. First you note down. तो ये अपने आप में एक प्राइम नंबर का भी प्रोग्राम हो जाएगा और कंपोजिट का भी हो जाएगा. ठीक है. Next program you write a program WAP to enter a number. Write a program to enter a number and स्ट्रॉन्ग बाद मिलूंगा. वाइल लूप वाले प्रोग्राम बाद मिलूंगा. ठीक है. राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ इट. एंड फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ इट. तो अब इसी प्रोग्राम को करते हैं. आप देखो मैं कभी प्रोग्राम भी सेव नहीं करता, जरूरत नहीं है मुझे जब भी लॉजिक सोच के. अच्छा, एनी ऑफ यू can explain not the factor rather factorial. Can you explain what is factorial? थोड़ा जल्दी करना प्लीज. अगर किसी को पता है, स्पेशली मैथ्स स्टूडेंट को तो पता ही होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है. Come on, say no. So I will explain factorial. Suppose you have a number, पहले मैं समझा दूं. 4 है. फैक्टोरियल का साइन ये होता है फैक्टोरियल. तो 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 into 1 is equals to 4 is equal to the 24. It is the factorial of a number. Definition says if you have n, n का फैक्टर क्या होगा? n into n minus 1 into n minus 2 and so on greater than equals to 1. अब आपको समझ आया what is the factorial? Please show thumbs up. So you have understood. अब जब फैक्टोरियल समझ में आ गया तो फिर इसका प्रोग्राम बनाना कौन सा मुश्किल है? 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट ही तो निकालना है, या n से 1 तक का प्रोडक्ट निकालना है. Last time the program which I have taught you that in my previous class, sum of 1 to n natural number same program है. उसमें सम था, इसमें प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं है. प्लस की जगह मल्टीप्लाई साइन आएगा. एक बात हमेशा लाइफ टाइम याद रखना, when you find the product of numbers, always initialize the value as 1. When you are finding the sum or difference of series of numbers, then you give the initial value as 0. समझ में आ रही बात? अगर 0 नहीं होगा, who is taking control of my system? आप मेरे साथ कोई हरकत नहीं करना, नहीं तो मैं आपको 1 मिनट क्लास से बाहर कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा. सो टेक केयर. आप एक कंप्यूटर टीचर से बात करें, कोई दूसरा टीचर नहीं है. यहाँ पे कोई भी हरकत होगी मैं नोट करके उसको सीधे टीसी दिलवा दूंगा. तो कोई भी हरकत नहीं होगी, मुझे पता है. आप यहाँ से एडमिन भी बन सकते हो, यहाँ से कुछ भी कर सकते हो. अभी सारी चीजें मैं यहाँ से खत्म कर दूंगा. फिर ना तो आप मुझसे बात करोगे ना कोई साइन दिखा पाओगे, कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा. तो प्लीज टेक केयर. बिल्कुल मेरी स्क्रीन पे कुछ भी हरकत नहीं होनी चाहिए. कम टू द पॉइंट हियर. सो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर, write a program to enter a number and find the factorial. So as I told you, when you find the product series, तो उसमें 1 होगा. नहीं तो 1 से अगर 0 कर देंगे तो इनिशियली
तो भले से कुछ भी प्रोडक्ट करो रिजल्ट 0 ही आएगा। एंड सम के केस में 1 कर दोगे तो रिजल्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली नंबर शुड बी स्टार्ट एडिंग विद 0। अगर 1 से ऐड करेंगे तो एक सम में एक्स्ट्रा आ जाएगा। अंडरस्टूड? सो व्हेन यू फाइंड सम you initialize 0, when you find product initialize 1. Got it? So, अब मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ इसका। n equals to इनपुट कर रहे हैं तो सीधे, तो c is equals to I'll give value as 1 या s किया था, कुछ भी कर लो यार, तुम्हें फैक्टोरियल कर लो, f is equals to factorial, f is equals to 1. Okay, now you start here for I in range now I'm not entering anything. For I in range 1 comma, suppose I am giving n plus 1. Okay, then I have to find out the factorial. That means I have to write here f is equals to f into I, हो गया खत्म, and then I write here print. थोड़ा ढंग से लिख लें, अदरवाइज हम फैक्टोरियल सीधे f लिख सकते थे, बट आई विल राइट इट हियर, आई एम नॉट एंटरिंग नाउ एनीमोर। फैक्टोरियल वेटिंग रूम में डाल दूंगा आपको। फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल्स टू, अच्छा लगता है ऐसे लिखने में, f, नहीं तो सीधे फैक्टोरियल f लिख सकते थे, इतना, दैट वाज इनफ। ये सारा रिमूव करके आप लिख सकते थे फैक्टोरियल f। समझ में आ रहा है? नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम एंड शो इट टू यू। रन मॉड्यूल, ओके, अगेन आई रन, and here I am entering the number as, suppose I am entering as 4. Now factorial of 4 is equals to, if I enter the number as 5, factorial of 5 is equals to 120 and so. Please note it down or take the screenshot, whatever you want. If you have understood, please show thumbs up. Good. Shabash. Nice. Okay. Now the class time is over. We'll meet in the next class and I will teach you some more programming part. मैं जल्दी से जल्दी पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन टाइम भी मिले, मुझे और भी कुछ पढ़ाना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके। आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, प्लीज आस्क एनी ऑफ यू, जल्दी से। आई एम गिविंग लास्ट मिनट टू यू, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। बेटा पूछ लो, नहीं है तो मैं एग्जिट करूं क्योंकि दूसरी क्लास में आपको भी एंटर होना है। सो ओके, बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।